राइट। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर दिसंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहा है? इट इज 1 जुलाई 2005। यू आर अ मैनेजर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ मैकलेन एंड को, a firm of chartered certified accountants. You are assigned to the audit of Gruber Company, which has a financial year ending 30th September X5. ठीक है। Gruber Company is a new audit client. Audit ठीक है, of McLean and Co. The audit firm having been appointed in January X5. The audit was previously performed by Elise Associate. ठीक है जी। Gruber Company is owned and managed by the Gruber family. The principal operation being the design and construction of bespoke machinery used in the oil industry. इतना है। उसके बाद जी लेफ्ट साइड पे देख लो या राइट साइड पे देख लो, एक ही बात है। पार्टनर्स ईमेल है, देखो उसने बता दिया, एन ईमेल विच हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द एल पावर। दूसरा बिजनेस एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन मैटर्स रेलेवेंट टू ऑडिट प्लानिंग। तीसरा, अब वो आपको कह रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। चौथा जी वो आपको कह रहा है बिजनेस डेवलपमेंट्स हैं। और नंबर 5 मीटिंग नोट्स हैं फ्रॉम फ्रॉम रिसेंट मीटिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे आपको देखने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा सीधा आप आ रहे हो पहले एक्सट्रैक्ट की तरफ। सो टू ऑडिट मैनेजर from Alpawal Audit Engagement Partner, subject audit planning, Gruber Company, date GVF 1st July X5. Hello, I have provided you some information which you used to help you to planning the audit of Gruber Company for the financial year ending 30th September X5. As you know, Gruber Company is new client and the firm client due diligence procedures were already successfully completed. Highly requirement, describe the matters to the planning of an initial audit engagement which should be considered in planning the audit strategy for Uber company। तो सिंपल है। यहाँ पे टू में, सॉरी, जब हम लोग शुरू करेंगे तो टू में क्या आ जाएगा? ऑडिट पार्टनर। फॉर्म में क्या आ जाएगा? ऑडिट मैनेजर। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? ग्रूबर कंपनी ऑडिट प्लानिंग। सही है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में दिस ब्रीफिंग नोट्स इंक्लूड, कॉपी पेस्ट करा, मैटर स्पेसिफिक टू द प्लानिंग ऑफ एन इनिशियल ऑडिट engagement, comma, evaluation of the audit risk to be considered, comma, also the audit procedures to be performed in respect of the Nicompatemi building, or comma, fine and and finally ethical issues raised and recommended actions to be taken by our firm। क्या आपका इंट्रोडक्शन आ गया? अच्छा जी, पहली रिक्वायरमेंट हमने देख ली है। क्या है? डिस्कस द मैटर्स स्पेसिफिक टू द प्लानिंग ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट which should be considered in developing the audit strategy for Gruber company। और दूसरी हम लोग अभी देखते हैं थोड़ी देर में। आ जाए जी। ब्रीफिंग नोट्स देख लें जी। ऐसे ही लिखा है मैंने, दिस ब्रीफिंग नोट्स इंक्लूड डिस्कशन implication of audit engagement, evaluation of audit risk, also recommendation of audit procedures to be performed in relation to investment properties. Finally, the notes addressing the ethical issues are arising from meeting with company's management team। इतना सिंपल कर दी। ठीक है। अब आ जाए जी, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हमारी पहली रिक्वायरमेंट, ए रिक्वायरमेंट है, विच इज बेसिकली उसमें मैंने क्या बात करी है? इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट दे several factors which should be considered in addition to planning uh, pro- uh, procedures which should be carried out। ठीक है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए।
एडिशनल टू ऑडिट प्रोसीजर्स डायरेक्ट जो कि आपको कैरिड आउट कर रहे हो. ISA 300 suggests that unless prohibited by law or regulations, arrangement should be made with the predecessor auditor for example, reviewing the working papers. ठीक है. ISA 300 ISA 300 हमें यहाँ पे सजेस्ट करता है कि अगर आपको लॉ एंड रेगुलेशन अगर मना करता है, उसकी तरफ से प्रोहिबिटेड है, तो रहने दो, वरना आप जो प्रीडिसेसर ऑडिटर है यानी कि जाने वाला, उसके वर्किंग पेपर्स रिव्यू करें फॉर एग्जांपल. ठीक है. इसके लिए मजीद therefore communication should be made with the Elise associate to request access to their working paper for the financial year ending 30th September X4. ठीक है. तो भाई कम्युनिकेट करो, जाना वाला जो ऑडिटर है एलिस एसोसिएट्स, और उससे रिक्वेस्ट करो कि वो एक्सेस कर दे वर्किंग पेपर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30th September X4. ठीक है. The review of previous year working papers would help McLean and Co. in planning the audit, for example, as it may highlight the matters uh, pertaining to the audit of opening balances. ठीक है. Opening balances or an assessment of appropriate of Gruber company accounting policies. ठीक है. जो रिव्यू है प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर्स का, उससे क्या मैकलेन एंड कंपनी को यानी कि जो हमारी फर्म है उसको क्या हेल्प होगी कि जी फॉर एग्जांपल वो हाईलाइट कर लेगा मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, और दूसरा वो असेस कर लेगा अकाउंटिंग पॉलिसी की जो अप्रोप्रिएटनेस है कि वो ठीक है या नहीं, वो भी उसकी भी असेसमेंट हो जाएगी. अच्छा जी. मजीद they should also be consideration matters which were discussed with the Gruber company management in connection with the appointment of Magdalen and Co as auditors. ठीक है. फिर the team should also consider major issues which have been discussed, जो कि आपने उनसे डिस्कस करने होंगे at initial meetings. ऑडिट के शुरू में ये बात कर लोगे. Or ethical issues raised during client acceptance should be considered in terms of the potential impact on the audit strategy. For example, the need for an independent partner review of the audit. Ethical issues जो भी आपके रेज होंगे ड्यूरिंग द ऑडिट, वो भी आप उनसे डिस्कस कर लोगे रिगार्डिंग स्पेशली इन पर्टिकुलर कि जी इंडिपेंडेंट पार्टनर रिव्यू भी होगा ऑडिट. अच्छा जी. सो फार सो गुड. ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट हो गई 6 मार्क्स से. ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे इनको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अगर आप यूज करो तो आराम से जबरदस्त आंसर आपका 6 मार्क्स का बन सकता है. अच्छा जी. उसके बाद आगे आ जाए. Using the information in Exhibit 1, 2, 3, and 4, evaluate the significant audit risks to be considered in planning the company audit. 24 मार्क्स अवेलेबल हैं ऑडिट रिस्क हमें बताने हैं. अच्छा जी. सिनेरियो पे हम लोग फॉरन नहीं जा रहे, उसकी रीजन ये है कि हमें पहला पहला रिस्क पता है. ठीक है. और पहला रिस्क क्या है? न्यू ऑडिट क्लाइंट. ठीक है. फर्स्ट ईयर इन विच अच्छा जी. फर्स्ट ईयर इन विच वी हैव ऑडिटेड द कंपनी. ठीक है. विच इंक्रीजेस द डिटेक्शन रिस्क. पहला डिटेक्शन रिस्क हमें इससे मिल रहा है क्योंकि पहला साल है, तो ऑब्वियसली से डिटेक्शन रिस्क हो रहा है. देयर इज आल्सो रिस्क दैट ओपनिंग बैलेंसेस एंड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, जो कि हमने ऊपर रिक्वायरमेंट में भी बात करी. ठीक है. ऊपर रिक्वायरमेंट में भी हमने बात करी है कि ओपनिंग बैलेंसेस और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी हमारी गलत हो सकती है, इनकरेक्ट हो सकती है. The risk can be mitigated through rigorous audit planning, यानी कि बेहतर ऑडिट प्लानिंग के जरिए, and by receiving working papers after getting from and from reviewing working papers after getting from LIS associates. छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ये बात कर दी, 2 मार्क्स इस पे मिल जाए. ठीक है. अब हम लोगों को जो है वो जरूरत है कहाँ जाने की? सिनेरियो पे जाने की. चलो जी. The company was established 15 years ago by Martin Gruber, an engineer who had patented a new type of machine used in the oil industry. Martin, who is the company's CEO,
chief executive officer, own 16% of the shares in the company, with the remainder split equally between his brother and Craig and Aries Gruber. The company board of directors includes Craig Gruber as a CFO, Iris Gruber as marketing director, and a non-family member, K. Valley Hayes, who is directors of operations. Gruber company has 300 employees, most of whom are mechanical engineers. Martin is planning to sell his shares and retirement from the business. Craig and Iris, who are younger than Martin, will retain their shares, and their board positions initial discussion with a potential acquirer for Martin shares began last month. चलो जी, हमें यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया। मार्टिन ग्रूबर मेजर शेयर होल्डर है, उसके 60% शेयर हैं, और उसका भाई है और एक और है जिनके दरमियान 20-20% है। और मार्टिन ग्रूबर जो है वो अपने से बुढ़ा हो गया है, बुढ़ा हो गया है, तो रिटायरमेंट लेने की सोच रहा है, अपने शेयर सेल करने की सोच रहा है। तो यहाँ पे हमें एक और पॉइंट मिलता है बड़ा जबरदस्त, जिससे हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। वो क्या है? मैनेजमेंट बायस। आ जाओ जी। Management bias. The company major shareholder Martin Gruber planned to sell his shares in company, and initial discussion were uh, already taken place with a potential purchaser. This situation means there is a risk of management bias in that Martin will want to maximize selling price, and for this reason there is a risk that assets will be overstated and revenue and profitability maximized. ठीक है जी, सिंपल है। क्या बात करी है कि कंपनी का मेजर शेयर होल्डर मार्टिन ग्रुबर है, और वो अपने सेल्स शेयर करने सिचुएशन की वजह से रिस्क है कि मैनेजमेंट जो है वो अपने जो है एसेट्स वैल्यू, सेलिंग प्राइस जो है वो ओवरस्टेट कर सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है, ताकि सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो सके। 2 मार्क्स और मिले, 4 मार्क्स हो गए हमारे। ठीक है। अम, अब हम जरा मैं आपको एक चीज और बता दूं। मैक्सिमम ऑडिट रिस्क में कितने मार्क्स अवेलेबल होते हैं? 4 मार्क्स। कहाँ से? अब वो 4 मार्क्स आप किस तरह उठा सकते हैं? ये है तरीका। मटीरियलिटी, ट्रीटमेंट, रिस्क, कंक्लूजन। ठीक है। मटीरियलिटी 1 नंबर, ट्रीटमेंट बता दिया, काउंटिंग ट्रीटमेंट 1 नंबर, रिस्क बता दिया और उसका कंक्लूजन दे दिया, एक एक नंबर, मैक्सिमम 4 मार्क्स। मटीरियलिटी, ट्रीटमेंट, रिस्क अगर आ रहा है किसी सिनेरियो में 3 मार्क्स, ट्रीटमेंट, रिस्क, कंक्लूजन आ रहा है 3 मार्क्स, ट्रीटमेंट और रिस्क आ रहा है 2 मार्क्स, मटीरियलिटी या ट्रीटमेंट आ रहा है 2 मार्क्स, वाइस वर्सा। ठीक है। तो मैक्सिमम 4 मार्क्स हो सकते हैं, अदरवाइज 3 या 2। तो अभी जो हमारे पास थे 2 पॉइंट्स हम लोगों ने बात करी है, 2 2 मार्क्स के 2 थे, इसके अंदर ज्यादा बात थी नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं सिनेरियो में आगे। The company owns a head office and leases a production facility where machines are designed and assembled under contract with individual customers. Typically, an order takes 14 months to complete from the initial design through to installation at the customer's premises. This is due to the large size of the machinery being produced and to customer order and the very specific requirement of customers. ठीक है, हमें ये एक और चीज मिल गई। अब जरा एक और हम लोग आ जाएं जी। हमें मिल गया, एक और पॉइंट मिल गया। क्या पॉइंट मिला है? कि कंपनी का हेड ऑफिस है, लीज करता है प्रोडक्शन फैसिलिटी, मशीन्स डिजाइन होती हैं, असेंबल्ड होती हैं अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। इंडिविजुअल कस्टमर्स को का हम लोग देखते हैं 14 मंथ्स लगते हैं कंप्लीट होने में डिजाइन को, और कस्टमर पे ये जो है वो लार्ज साइज है मशीनरी की, और स्पेसिफिक होती है अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। ठीक है। तो जी,
इसको हम लोग थोड़ा और देखते हैं, क्योंकि थोड़ी कम इंफॉर्मेशन है। अब रेवेन्यू में आगे आ जाए। रेवेन्यू इज ड्राइव फ्रॉम, यहाँ पर रेवेन्यू 75 मिलियन का है, प्रोजेक्टेड है 65 मिलियन का है लास्ट ईयर का। ओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 18 और 10, पीबीटी है 14 और 9, टोटल एसेट्स हैं 120 और 88 के। So revenue is derived from contracts involving to design, manufacture, and installation of machine to customer order. Currently, the company establishes of its customers contract to contain only one performance obligation: the successful installation of the machine at the customer's premises. However, around a quarter of the contract also include a 3-year support service for the machinery installed. आ जाओ बेटा, अब इस पे गपशप करते हैं। कंपनी ये इस अब हमें इसका कंप्लीट पता चला है, तो आज हम बात करें रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू सपोर्ट सर्विस। कंपनी सेल्स around one quarter of its machine under a contract which include supplier service, but all contracts are currently established with only one परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जो कि सिनेरियो में उसने हमें बात बोली थी कि 1/4 ऑफ इट्स मशीन बेस्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड सपोर्ट सर्विस, और हर हर जो कॉन्ट्रैक्ट है करेंटली वो उसके अंदर सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिकग्नाइज हो रहा है। ये बात। अब आ जाए आईएफओ ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। नंबर 2 पॉइंट जो कि मेरा है इसके लिए, IFRS 15 requires that when accounting for revenue, the performance obligation in the contract are identified, and where contract has performance obligations। IFRS 15 की रिक्वायरमेंट है, जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है रेवेन्यू की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पता चलती है। तो आगे अब आए number 3, revenue should be allocated to the performance obligation in the contract by reference to their relative stand-alone selling price। रेवेन्यू जो है वो एलोकेट होगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। ठीक है। इंस्टॉलेशन का इंस्टॉलेशन के आगे, अगर वारंटी है तो वारंटी की उसकी एलोकेट होगी। ठीक है। कुछ सर्विसेज हो रही हैं तो वो एलोकेट होगी इस तरह। देयर इज एन ऑडिट रिस्क दैट ग्रुबर कंपनी इज नॉट disaggregating the contract revenue between obligation relating to the supply and installation of a machine, provision of revenue being overstated if revenue relating to the support service recognized at time part of revenue। ठीक है। तो अब हमने बता दिया कि क्या रिस्क क्या है, कि ग्रुबर कंपनी जो वो डिसएग्रीगेट नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट को बिटवीन ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू द सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, और सपोर्ट सर्विस का प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से रेवेन्यू जो है ओवरस्टेटेड होता हुआ नजर जाएगा। रेवेन्यू रिलेटिंग टू सपोर्ट सर्विस जो है, और उसको अगर हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल गए 3 मार्क्स। तो ओवरऑल तालियां मारो, 7 मार्क्स मिल गए। आ जाए जी, अब हमारे पास रेवेन्यू से रिलेटेड और भी जरा चीजें हैं, और उसके लिए हमें थोड़ा एग्जिबिट 4 पे जाना पड़ेगा। ये देखो आ गया। In October 2004, Gruber Company entered into a significant contract to design, construct, and install a large piece of machinery for a new customer, Argyle Company in October X4. It was established that the design and construction of the machine would take 15 months, 15 महीने लगेंगे। ठीक है। With installation estimated to take place in January X6, the agreed price of the machine is 6 million, and Gruber Company will have incurred costs of 2.6 million in relation to the contract by 30th September X5. Based on the projected plans, the estimated value of the work certified at 30th September X5, 4 million, and the estimated cost to the complete is 1.2 million as noted in Exhibit 3. Operating profit includes a profit of 2.2 million relating to the Argyle contract। ठीक है। और फिर अगला आ जाता है जॉनसन कॉन्ट्रैक्ट। ऑन 1st December X4,
Gruber company entered into a contract with Johnson company, design, construct, and install a machine. The contract, which will take 12 months to complete, was initially projected to make a profit of 2.8 million. However, due to cost inflation and errors made in the initial project budget, the contract is now estimated to make a loss of 840,000. ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें मिले। पहले एरगाइल की बात करते हैं और फिर जॉनसन की करते हैं, जो कि हमारा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे सीएफओ आपको कह रहा है कि द सीएफओ सजेशन दैट द फुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन योर रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकरेक्ट। जाहिर है गलत है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में भाई जब जब रिकॉग्नाइज होता है तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन performing long-term contracts, IFRS states the 15 state that appropriate method of measuring progress towards the satisfaction of performance obligation। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका हम लोग मेजर करते हैं कितने परसेंट कंप्लीट हुआ होता है। 10% कंप्लीट हुआ होता है तो 10% रिकॉग्नाइज करते हैं, 15% होता है तो 15% करते हैं। राइट। तो द completion of the contract include output method and input method। दो methods होते हैं, ये हमें सबको पता है। which are based on determination the stage of completion of performance obligation by reference to the value to the customer of the goods on service transfer to date related to the remaining goods or services promised under the contract। ठीक है। completion of the contract include output और input method होता है which are based on determination of the stage of completion। ठीक है, रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ द कस्टमर आती है इसके अंदर, और जो कि वो रिकग्नाइज कर देता है। ये बात आ गई। चौथी बात, बेस्ड ऑन द स्टेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी विच इज टू यूज द आउटपुट मेथड द स्टेज ऑफ कंप्लीशन शुड बी बेस्ड ऑन वर्क सेटिस्फाइड। आउटपुट मेथड जो कि उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसके बेसिस पे वर्क सेटिस्फाइड देखना होगा, विच इज प्रोजेक्टेड टू 4 मिलियन। और जो कंपेयर्ड है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर करते हैं तो 6 मिलियन, गिविंग अ परसेंटेज ऑफ 66.7%। तो कंपनी शुड देयरफॉर रिकॉग्नाइज 66.7% ऑफ एस्टिमेटेड 2.2 मिलियन। तो प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट क्या आ जाएगा, 1.4 बिलियन। तो देयरफॉर जो इन्होंने 730,000 से ओवरस्टेटेड हो रहा है अगर ये पूरा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब आ जाए जॉनसन का ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वाले पे। ठीक है। तो the project profit to 30th September 5 include loss relating to the Johnson contract. It is correct loss should be recognized. However, method recognized to recognize loss over time is not appropriate। लॉस को रिकॉग्नाइज करना भाई अप्रोप्रिएट है, लेकिन ओवर टाइम यानी कि उसको टुकड़ों में तोड़ना वो गलत है। ठीक है। when contracts are expected to loss making they should be accounted for as onerous contract according to IS 37 which requires provision should be recognized for onerous contract। ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो लॉस मेकिंग आपको नजर आ रहे होते हैं तो वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू IS 37 जो कि लॉस मेकिंग होते हैं वो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अच्छा जी। तो an onerous contract is a contract in which the unavoidable cost of meeting the obligation is under the contract accesses the economic benefits to be received। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट आ जाती है उसके अंदर, और जो आपको उससे फायदा होना होता है उससे ज्यादा कॉस्ट लग जाती है, उसको हम ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो IS 37 states that provision should be make measuring based on the unavoidable onerous cost of following contractual obligation। तो हमें इसका अकॉर्डिंग टू IS 37 प्रोविजन बनाना होता है। अच्छा जी। दिस कुड बी सिग्नल ऑफ मैनेजमेंट बायस। ये मैनेजमेंट बायस होने का एक सिग्नल हो सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्लाइड
reduces the recognized within the profit for the year. चलो जी, आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। हमारा ये पॉइंट भी हो गया। अब जरा हम लोग देखें investment in property. In total, 2004, following the completion of the significant contract, the company purchased an investment property, the Nakopkami building, for 15 million. The property is a retail development in the country's capital city. The company is going to appoint an expert to provide a valuation of the property, and initial estimate of the increase in fair value of 2 million has been included in company's financial projection to 30th September X5. तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे अब आ जाए। $15 million invested in Nakatomi building is material, representing 12.5% of total assets. The change in fair value, which is recognized in P&L, is also material at 14.3% of PBT. 15 million जो कि इन्वेस्ट हुआ है Nakatomi बिल्डिंग में, वो 12.5% ऑफ टोटल एसेट्स है, और फेयर वैल्यू इन P&L के हिसाब से भी वो मटेरियल है 14.3% ऑफ पीबीटी। ठीक है, तो अब तक हम लोग 7 के बाद 3 मार्क्स, 10, फिर 3, 13 और 16, और ये हमारा हो जाएंगे तकरीबन 18 मार्क्स पे हम लोग आ जाएंगे। अच्छा जी, इट इज अप्रोप्रिएट दैट प्रॉपर्टी इज मेजर्ड फेयर वैल्यू एंड गेन इज रिकॉग्नाइज्ड विद इन प्रॉफिट एंड लॉस according to IS 40, entities can choose between fair value model and cost model अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। ये बात आ गई, ये अप्रोप्रिएट है, काउंटिंग ट्रीटमेंट भी ठीक यहाँ पर आ रही है। लेकिन आगे चलते हैं। व्हेन द फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज, गेन और लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन फेयर वैल्यू मॉडल मस्ट बी इंक्लूडेड इन पीएनएल। पीएनएल में आनी चाहिए। ये बात भी हो गई हमारी, ठीक है। नंबर 4, एन ऑडिट रिस्क अराइजेस फ्रॉम द साइज ऑफ द फेयर वैल्यू गेन विच हैज बीन रिकग्नाइज्ड। जो साइज है वहां पे ऑडिट रिस्क आ रहा है। क्यों? द प्रॉपर्टी वाज परचेज एट अ स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, शुरू में ली थी, एंड एन इंक्रीज ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ 13.3% इन 12 मंथ। ये बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी अभी मजीद होनी है। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू जो कि इंक्लूड हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मैनेजमेंट की टेक्निक हो सकती है प्रॉफिट्स बढ़ाने की। आ जाओ जी, फाइनली इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट के ऊपर, और उससे पहले the change in value of intangible assets represents the transaction which took place in March X5, whereby Gruber Company purchased some design from Martin Gruber for 9 million. The value of this transaction was determined by Martin Gruber. The audit engagement partner has asked for information to support this value, but nothing has yet been received from Martin. चलो जी, the intangible asset recognized in the year at the cost of the company of 9 million is material to SOFP क्योंकि 7.5% है of total assets. It is also material by nature as it is transaction between majority shareholder, CEO और company. तो ये related party transaction बन जाती है. So there is a risk of management bias related to this transaction. क्यों? मार्टिन जो है वो अपने सेल्स करने जा रहा है, शेयर सेल करने जा रहा है। सो देयर इज अ रिस्क दैट ट्रांजैक्शन इज एन अटेम्प्ट टू विंडो ड्रेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज एसेट वैल्यू, ताकि एसेट वैल्यू बढ़ाई जा सके, इन्फ्लुएंस किया जा सके बिजनेस वैल्यूएशन को, और अल्टीमेटली अपनी सेलिंग शेयर प्राइस को बढ़ाया जा सके। आ जाओ भाई, अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। द सेल ऑफ डिजाइन बाय मार्टिन ग्रूबर इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। क्यों रिलेटेड पार्टी? इज ए transaction is a transaction which has control or joint control over the reporting entity। ठीक है, therefore मार्टिन जो है वो रिलेटेड पार्टी है ग्रुबर कंपनी को, क्योंकि वो सेल कर रहा है, और ये रिस्क है कि जी डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू आईएस 24 ना दिया गया हो। फाइनली हमने क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ रेशोस निकाल लिए, और देखो रेवेन्यू 15.4 से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पीबीटी 55.6% से नजर आ रहा है। तो ये रेलेवेंट और अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इनकी देने की जरूरत है, इन पर्टिकुलर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं। तो विद एविडेंस मैनेजमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। आई होप ये यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।